So students, let us discuss the new topic, that is a solution topic. Okay, so let's start. We know that solution are of the two types, right? First of all, from where this term arises? This term arises from the topic mixture. So therefore, as we know that mixture of the two types, that is homogeneous and heterogeneous. Similarly, solution is also the two types. Like first one is your homogeneous solution, and then after another one you have a heterogeneous solution. Heterogeneous solution. Okay, homogeneous and heterogeneous solution. And in that furthermore category, in homogeneous, again one more things we have, that is called as a true solution. Means there's a true solution eventually, which is a type of your homogeneous solution, right? True solution, full name I'm writing over here, that is your true solution. Similarly, in case of heterogeneous, again दो चीज़ें हम लोग के पास मिलती हैं. That first one is called as your suspension, and then after another one is called as your colloidal. Okay, suspension and then after colloidal. Again keep in mind what we are studying, what the topic we have started, that is a solution and its types. Solution क्या है हम लोग का? Solution first of all, it is a mixture, it is a homogeneous mixture of two or more substances, right? Remember, it types may be two, like it's may be homogeneous or it may be heterogeneous. In case it's a homogeneous, सिर्फ एक ही type मिलेगा homogeneous में आपको, true solution. But if it is a heterogeneous, two types will be there. One will be suspension, another will be colloidal, right? In this particular, we will discuss only about the suspension or the true solution as per the length of the video duration of the video. So let us suppose okay, sorry, let's move to the next slide, and then after we will discuss then after definition first of all. So what is talking about the definition? First of all, see, it's a written homogeneous. Okay, means solution अभी मैंने क्या बताया आपका? It's a homogeneous mixture of two or more chemically non-reactive substances. That is, what are two or more reacting non-substances? One will be your solute and another one will be your solvent. And what is the solute and solvent? Let me make it clear. Let us suppose this is your beaker, and here we have taken 100 gram of water over here. लेट अस सपोज 100 ग्राम हमने यहाँ पे कुछ वाटर लिया है, 100 ml हमने वाटर लिया. ओके, लेट्स सपोज 100 ml से ही हमने वाटर लिया, एंड इन दैट आई एम एडिंग 5 ml ऑफ अल्कोहल, और लेट्स से 5 ml ऑफ एसीटोन, और 5 ml ऑफ एनी एसिड फ्रॉम योर लैबोरेटरी. सो ऑन कंपेरिजन टू दिस 100, ये 5 ml देखो, ये क्वांटिटी कम है आपकी. सो दिस विल बी दिस 5 ml सब्सटेंस जो आपने ऐड किया, दैट विल बी योर सल्यूट, एंड द सब्सटेंस विच इन एक्सेस इन प्रोपोर्शन विल बी कॉल्ड एज योर सॉल्वेंट, राइट? कीप इन माइंड, आप ऐसे याद रखोगे. सॉल्वेंट की स्पेलिंग देखो थोड़ी सी बड़ी है, सो इट इज़ अ एक्सेस इन प्रोपोर्शन, और जो इसकी स्पेलिंग कम है वो लेसन इन प्रोपोर्शन है, इट विल बी योर सल्यूट. सो आई गेस दिस वन इज ऑल्सो क्लियर. रिमेंबर, सोल्यूशन में दो चीज़ें, सल्यूट एंड सॉल्वेंट, बट इन केस ऑफ बाइनरी सोल्यूशन ओनली. देन आफ्टर टाइप्स ऑफ सोल्यूशन विल डिस्कस. देर आर 3 टाइप्स ऑफ सोल्यूशन: सैचुरेटेड, unsaturated, and then after supersaturated. First of all, discuss about unsaturated. Let us suppose we have taken the beaker और वाटर हमने इसमें लिया, एंड ऑलरेडी सम अमाउंट ऑफ सॉल्ट हैज़ बीन एडेड ओवर हियर, या लेट से कुछ शुगर आपने ऐड किया. बट वॉट विल हैपन, स्टिल इट विल अलाउ, अभी भी इसमें कुछ और अमाउंट ऑफ सॉल्ट, एक मोर अमाउंट ऑफ सॉल्ट कैन स्टिल बी एडेड. सो सच टाइप ऑफ सोल्यूशन विल बी कॉल्ड योर अनसैचुरेटेड सोल्यूशन. बट व्हाट विल हैपन ना, अब इसी सोल्यूशन में आप क्या करो, लंबे समय तक कंटिन्यूसली इसमें क्या करो, आप सॉल्ट ऐड करते चलो, ऐड करते जाओ सॉल्ट ऐड. एज टाइम विल कम, देन व्हेन नो मोर सल्यूट कैन बी एडेड ओवर हियर, कोई भी सल्यूट अब इसमें आपका ऐड नहीं हो पाएगा. एट दैट पॉइंट वी विल से दैट द सल्यूशन इज नाउ योर सैचुरेटेड सल्यूशन, राइट? थर्ड वन टॉकिंग अबाउट सुपर सैचुरेटेड, व्हाट विल हैपन. अब देखो, अब इसमें कोई मोर सल्यूट आप ऐड नहीं कर पा रहे हो, बट स्टिल इफ विल हीट इट, अब आप इसको आप हीट करोगे, मॉलिक्यूल्स विल गेट काइनेटिक एनर्जी. मॉलिक्यूल्स को क्या मिलेगा? काइनेटिक एनर्जी. जस्ट बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल्स विल मूव फार अपार्ट, पार्टिकल्स दूर दूर जाएंगे. सो व्हेन पार्टिकल्स विल मूव फार अपार्ट, लेट्स से 2 particles are there, particles will move far apart, few more particles can occupy the space in between of this, or some amount of solute still can be dissolved in it. ठीक है, तो उस केस में सोल्यूशन आपका सुपर सैचुरेटेड होगा. फिर वापस उसको आप फ्रिज में रखोगे, तो जो आपने एक्स्ट्रा ऐड किया सल्यूट, दैट विल कम आउट ऑफ दिस सोल्यूशन. दैट्स अनदर थिंग. I guess this topic is also clear. Coming to the next one, then after alloys क्या होते हैं हमारे, देखो. First of all, alloys is a homogeneous mixture. Let me tell you the example of alloys, very common example, that is a coin.
ओके बचपन से हम लोग देखते हैं 1 रुपए की 2 रुपए की कॉइन, यू नो परचेजिंग और टॉफीज देयर. सो कॉइन में क्या होता है, अगेन हम लोग के दो डिफरेंट मेटल्स उसमें मिक्स हैं हम लोग के पास, दो डिफरेंट, समटाइम्स थ्री ऑल्सो माइट बी देयर, बट वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश. दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट इज अ होमोजीनस. ऐसा नहीं है कि कॉइन इज देयर सो वन कैन से दैट कि सर इस पोर्शन में आई कैन सी द कॉपर एंड दिस पोर्शन आई कैन सी द गोल्ड इज देयर और द प्लैटिनम इज देयर और जिंक इज देयर, सिल्वर इज देयर. ओके, so no one can say like that. It does mean it's your homogeneous mixture. Keep in mind, and this cannot be separated physically. Yes, some chemical methods are there through which we can separate, but by physical means we cannot separate it. Okay, so keep this in your mind. Then after we'll discuss about the true solution, right? This one is the most awaited topic, true solution. देखो एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें पार्टिकल की साइज़ क्या होगी, सबसे इंपॉर्टेंट बात 10⁻⁹ मीटर. इफ़ इट इज़ अ 10⁻⁹ मीटर, सो आई थिंक इट विल बी 1 नैनो, नॉट आई थिंक, ऑफकोर्स इट शुड बी 1 नैनोमीटर. याद रखिएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन विल बी आस्क्ड रिलेटेड टू नैनोमीटर ऑलवेज. क्लियर? इन ट्रू सोल्यूशन पार्टिकल की साइज इतनी ही छोटी है ना कि उसको आप माइक्रोस्कोप से भी अंदर क्या कर सकते हो, डिस्टिंग्विश आसानी से नहीं कर पाओगे. इट विल बी वेरी डिफिकल्ट से ट्रू सोल्यूशन. अगेन इट्स नेचर विल बी होमोजीनस, नो पार्टिकल्स कैन बी सीन विजिबली क्लियरली. इट्स नेचर विल बी योर होमोजीनस नेचर का होगा आपका. और प्रॉपर्टीज देखते हैं, देन दिस टॉपिक विल बी मोर क्लियर टू यू. सी लुक एट द नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ योर ट्रू सोल्यूशंस. सबसे पहली प्रॉपर्टी देखो, इट विल बी योर होमोजीनस इन नेचर. Okay, it will be your homogeneous in nature. What means to say homogeneous? Since it is a homogeneous in nature, like if I am taking one particle from here, one particle from here, one particle from here, one particle from here, everywhere you will have the same composition. हर एक जगह से आपको सेम कॉम्पोजिशन मिलेगा. देयर फॉर यू विल से दैट इट्स अ होमोजीनस इन नेचर. लाइक इफ़ यू हैव टेकन, आपने वाटर लिया, इन दिस वाटर यू हैव एडेड सम अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स देयर. ठीक है, कुछ नमक आप अपने किचन से ले आओ, ऐड कर दो. एवरी विल गेट द सेम कॉम्पोजिशन, नो सेपरेबल बाउंड्री विल बी देयर, सो विल से दैट इट्स अ होमोजेनस इन नेचर. देन आफ्टर सॉल्यूट पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन व्हाट इज अ सॉल्यूट पार्टिकल्स की साइज़ कितनी होगी, 10⁻⁹ मीटर, और वी कैन कॉल इट इज़ अ 1 नैनोमीटर. याद रखिएगा, नैनोमीटर स्मॉल लेटर में लिखेंगे. थर्ड प्रॉपर्टी इज अ क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट. ओके, मोस्टली 90% और मोर देन दैट जो भी आप ट्रू सोल्यूशन बनाओगे ना, दैट विल बी क्लियर एंड दैट विल बी ट्रांसपेरेंट ऑल्सो. ओके, लाइक यू कैन सी द थिंग्स बियॉन्ड हियर ऑल्सो, देयरफॉर इट विल बी योर ट्रांसपेरेंट इन नेचर. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, does not scatter light. So what means to say does not scatter light? Let us suppose we have this true solution and we are passing the beam of light here. So what will happen, ये light बी और ray of light जो है ना, इस particles के बीच में कहीं scatter नहीं करेगा, ये सीधा पास करके यहाँ पे निकल जाएगा. अगर कोई आप स्क्रीन लगा रखे हो, on that screen you will can obtain, you can see the very easily the this ray of light, very easily you can see. So we can say that the true solution does not scatter. इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई फिल्ट्रेशन. अब देखो पार्टिकल की जो साइज़ है ना वो काफ़ी छोटी है, 1 नैनोमीटर है पार्टिकल की साइज. सो नो फिल्टर पेपर कैन नॉट सेपरेट इट. कोई फिल्टर पेपर इनको सेपरेट नहीं कर पाएगा. लास्ट वन, पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन. नो मैटर आप कितनी देर तक इस सोल्यूशन को छोड़ दो, नो पार्टिकल्स यू विल से दैट कि यहाँ पे कोई एक पार्टिकल्स हमारा सेटल डाउन दिखा, नो पार्टिकल्स. सो देयर फॉर वन एक्स्ट्रा वर्ड आई लाइक टू ऐड ओवर हियर कि जो आपका ट्रू सोल्यूशन है वो स्टेबल इन नेचर है. याद रखना आप लोग का. So I guess these were the few properties of true solution as well as the definition of solution also I have covered, along with the one additional topic. I guess what was that? That topic was your, this additional topic was your, just a minute, that additional topic was your alloy. This topic is clear. In this next video we'll discuss about the suspension. हम लोग डिस्कस करेंगे अभी उसमें सस्पेंशन के बारे में and its properties also. In case if it's possible, I'll share the notes of this second chapter, the complete notes of my own handwritten notes in the description. Please do check it out for that also. Till the time, keep watching me on my channel Learning with Ankit. Thank you for watching.